Right. Welcome dear students of 10th standard. We are going to talk about the numericals of Science 1, chapter number 5. Okay. Now, few numericals are there. We will first go for the unsolved numericals. Okay. And then we will see some solved numericals. So, before going to the numerical part, we need to understand some basics. Like the very first thing, we need to understand the principle of heat exchange. What is this principle of heat exchange? And even before to understand the principle of heat exchange, you need to understand what do you mean by a hot object and a cold object. A hot object and a cold object, right? This is all the conceptual part we are discussing for the numericals. So let's first start with the hot object and cold object, guys. Okay? Now, this concept is basically a relative concept. Relative concept का मतलब क्या होता है? It is totally depend upon the values, the instantaneous values, the current values. Let me give you the example. ऐसे नहीं समझेगा. Suppose मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस एंड देर इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? करेक्ट है. So in this scenario, the object with 50 degrees Celsius is having obviously the more temperature. So this will be treated as a hot object and this will be treated as a cold object, right? Correct? But if I will take some another scenario, and in that scenario, you see again the temperature of object is 50 degrees Celsius here, but the temperature of this particular object is about 80 degrees Celsius. All right. Now comparing with this particular object, what I will say, this is a cold object, right? Because the compare it, if I will do the comparison, this is having the more temperature. So this will be the hot object and this will be the cold object. So this is what I wanted to say कि heat में hot object and cold object is a relative concept. ठीक है? Temperature जिसका ज्यादा रहेगा वो instant पे that will be treated as a hot object. जिसका temperature कम रहेगा that will be treated as a cold object. This is the very first thing. Then let's talk about the principle of heat exchange. So when I place a hot object and a cold object, so there is a hot object and nearby to it there is a cold object. So according to principle of heat exchange, what happens? The heat waves, you see, this is the heat. Okay. The heat is traveling from a hot object to a cold object. The heat travels from hot object to cold object. Okay. Now let's see some technical terms over here. So अभी hot object में से heat निकल रहा है ना, मतलब the hot object, what I will say, the hot object releases heat. The hot object releases heat, right? वो अपने अंदर से heat निकाल रहा है और सामने वाले को दे रहा है. ठीक है? In case of cold object, the heat is coming, right? So what I will say, the cold object absorbs heat. The cold object absorbs heat. So this thing you will always keep in your mind. Okay? A hot object will release the heat and a cold object will absorb the heat. Okay. Now, what are the consequences of this thing? Let me tell you. Suppose initially, I will set some time over here. Let's say 5 o'clock, right? This is the time I'm saying, 5 p.m. At 5 p.m., the hot object was about 50 degrees Celsius and the cold object was about 30 degrees Celsius. So because of this heat transfer, you tell me what will happen. The temperature of hot object will decrease because since it is releasing the heat. So at 5:30, the temperature becomes 40 degrees Celsius, right? The temperature decreased. And here, since the cold object is absorbing the heat,
the temperature will increase. So this 30 degree has become now 40 degree. बराबर है? तो ये आधे घंटे में क्या हो गया? हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो गया और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया, राइट? एंड नाउ यू विल सी एट 5:30 PM दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट? द मोमेंट व्हेन देयर टेम्परेचर्स विल बिकम सेम, द हीट ट्रांसफर विल स्टॉप. Heat transfer will stop, right? So this is basically the principle of heat exchange. There will be a hot object, there will be a cold object. The hot object will release the heat, the cold object will absorb the heat. The hot object will show rise, oops, sorry. The hot object will show not rise, decrease in temperature. And the cold object, since it is absorbing the heat, so it will show the increase in temperature, right? And ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं बन जाता तब तक, ठीक है? Now guys, let's talk about some formula. एक हॉट ऑब्जेक्ट ने हीट रिलीज किया तो कितना रिलीज किया? So for that there is a formula. And by the way, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है. So just see the formula what I'm writing. I will write twice for you guys. Heat released by hot object. Heat released by hot object. This will denoted by Q, and the formula is MC delta T. MC delta T. Okay, where M, as we all know, M is the mass of that object. C is a constant, guys. C is called as the specific heat capacity. Specific heat capacity. So this is a constant that will be given to you, and it is a material based constant. जैसे material रहेगा वैसे उसका value अलग अलग रहेगा, ठीक है? Material oriented property है, that is C. And this is the important thing, delta T. Delta T is what? Delta का मतलब होता है difference. Delta का मतलब होता है difference, right? So यहाँ पे अपने को क्या करना है? अब देखिए hot object के केस में क्या था? The initial temperature T1 was high and the final temperature T2 was low, right? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाई माइनस लो, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2. डेल्टा T का वैल्यू रहेगा T1 माइनस T2. Why so? Because in case of hot object, the initial temperature will be high. पहले वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा और अपने अंदर से हीट निकाल के उसका टेम्परेचर कम हो गया है. So the T2 will be less, right? That's why this subtraction is there. Similarly, we can formulate a formula for, since your cold object is gaining the heat, right? So heat gained by, I hope my mic is on. Oops. Yes, it is on. Cold object. The formula is same, but you see the difference. There is a only small difference over there. Again, M will be the mass, C will be the specific heat capacity. But guys, in case of delta T, now here, just see over here. In case of cold object, the initial temperature was low, right? And by absorbing the heat, there will be the increase in temperature. So here, T1 will be low and T2 will be high, right? So the difference I will write it as T2 minus T1. This is the basic, a little difference between the heat released by hot object and the heat gained by cold object, right? So you please keep these things in your mind. In case of hot object, we will do T1 minus T2. Since the initial temperature is high, the final temperature is low.
In case of cold object, we will do T2 minus T1, since the final temperature will be high and the initial temperature will be low. These are the two formulas you need to understand. Then there is another formula. There is another formula for state change. For state change. तो गाइस देखो कभी कभी क्या होता है कि सपोज मैंने लिया आइस. Okay, I'm taking an ice over here, and this ice is absorbing the heat. The ice is absorbing the heat, right? And because of this, the ice has now become the water. The ice has now become the water. So you can, and suppose ice का temperature था 0 डिग्री सेल्सियस and बाद में वो water बना, तो उसका suppose temperature मैं लेता हूँ एक 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो यहाँ पे two types of changes are there. Two types of changes. What are those two types of changes? There is a temperature change, right? Temperature change भी हो रहा है. So whenever there is a temperature change, you will go by this formula. MC delta T. Q is equals to MC delta T. Okay. But along with that, there is a state change also. So for state change, you will go by this formula. Q is equals to ML. M is a mass, L is a latent heat. This will be given to you. Latent heat का भी value दिया रहेगा, ठीक है? So whenever there is a only temperature you changes there, मतलब सब में खाली temperature change दिया है, तो you will use only this formula. अगर only state change है, मतलब temperature के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, खाली बोल दिया कि यार मेरे पास आइस था और आइस बन गया पानी, सो वहां पे सिर्फ स्टेट चेंज के बारे में लिखा है, तो यू विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला. करेक्ट है. बट लाइक दिस सिनारियो, they are talking about the temperature change as well as they are talking about the state change. So what you will do is you will simply plus them. You will use both formula. You will use both formula. अगर टेम्परेचर चेंज भी है और स्टेट चेंज भी है, तो यू विल यूज बोथ फॉर्मूला, और दोनों को क्या करना है, अपने को प्लस करना है. क्या करना है? प्लस करना है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूमेरिकल. लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट. Equal heat is given. We are talking about the formula of this on number 1 from your unsolved numericals. So the question is equal. You can keep the textbook in front of yourself. I'm just reading the sum for you guys. Equal heat is given to two objects, A and B, of mass 1 gram. Okay, so there is a object A and there is a object B. Okay, equal heat is given to two objects. मतलब क्या guys, यहाँ पे देखो, there is no principle of heat exchange over here. ठीक है, क्योंकि दोनों को, उन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट को हीट दिया, तो वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड फॉर्म में रखेंगे. आइसोलेटेड फॉर्म मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ए अलग था और ऑब्जेक्ट बी अलग था. अगर मैंने ए और बी को साथ में बिठाया, तो देयर विल बी अ प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, एंड फिर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू देयर सिनेरियो, वी आर treating the object A separately and treating the object B separately. तो ऑब्जेक्ट ए को मैंने क्या किया, हीट दिया. ऑब्जेक्ट बी को भी हीट दिया. ठीक है, इसने हीट एब्जॉर्ब किया क्यूए. अभी हीट अपन ने दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो ऑब्जेक्ट, द हीट एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट ए इज क्यूए एंड द हीट एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट बी इज क्यूबी. ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि इक्वल हीट इज गिवन टू दैम. तो ये दोनों भी हीट क्या रहेंगे बोलो, इक्वल रहेंगे. क्या रहेंगे, इक्वल. ठीक है, तो फटाफट में लिख देता हूँ यहाँ पे. व्हाट इज योर क्यू ए, इट इज द हीट absorbed by
object A. What is your QB? It is the heat absorbed by object B. And what they are saying equal heat is given. So QA is equals to QB. QA is equals to QB. Okay? And then some information about their masses and all that stuff is given to you. So for object A, दोनों का मास भी देखो सेम है, मास भी सेम है, ऑफ द मास 1 ग्राम. सो यहाँ पे आई विल राइट MA एज 1 ग्राम. ठीक है. MB as also 1 gram. Temperature of A increases by 3 degree Celsius. Increases by. देखो गाइस यहाँ पे ये वर्ड जो है बाय का मतलब क्या है. मान लो अगर मैंने 10 डिग्री का टेम्परेचर था और 10 से हो गया 15, 10 डिग्री से हो गया 15, राइट. सो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ. इंक्रीमेंट, द एक्चुअल इंक्रीमेंट, द इंक्रीमेंट इज 5 डिग्री सेल्सियस. बराबर है. तो ये इंक्रीमेंट 5 डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला हम लोग ने. ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी, राइट. T2 माइनस T1. तो यहाँ पे उन्होंने क्या है जो लिखा है कि टेम्परेचर ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस. मतलब उन्होंने डायरेक्टली डेल्टा टी का फॉर्मूला या डेल्टा टी का वैल्यू दिया है तुम लोग को. उन्होंने ऐसे पहले टेम्परेचर इतना था, फिर टेम्परेचर इतना हो गया, ऐसा इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ नहीं है. द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन. The directly increment in temperature is given to you. मतलब the direct value of delta T is given over there. ठीक है. So in case of the object A, the delta TA is 3 degree Celsius. Okay. And in case of object B, the delta TB is 5 degree Celsius. Okay. And what we need to find, which object has more specific heat. तो दोनों का स्पेसिफिक हीट के बीच में कंपैरिजन करना है. CA एंड CB, राइट. CA एंड CB क्या रहेगा. CA इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट A, CB इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट B, राइट. इन दोनों के बीच में हम लोग को कंपैरिजन करना है या इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है. इनके बीच में का रिलेशन कि कौन किसका डबल है, ट्रिपल है, 1/4 है, 2/3 है, रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. चलो. With this information, what we will do, very simple. We know this one thing कि दोनों को हीट तो सेम दिया है. QA is equals to QB. फॉर्मूला यूज करो. हीट एब्जॉर्ब करो या हीट रिलीज करो, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है. MC डेल्टा टी. और ये वाले केस में क्या है, दोनों भी हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. दोनों भी हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है. तो QA इज इक्वल्स टू क्या आएगा, MC डेल्टा टी. इधर आएगा A, इधर आएगा A, इधर आएगा A. QB क्या पे आया क्या, MC डेल्टा टी. इधर आएगा B एंड C. ठीक है. दिस कंडीशन दे है ऑलरेडी गिवन कि दोनों को सेम हीट दिया है. इसके लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज नहीं अप्लाई करेंगे. हम लोग A और B को आइसोलेटेड सिस्टम में लेंगे. आइसोलेटेड मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों के ऊपर अलग अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है. ठीक है. now put the values guys. MA is your 1 ग्राम. अच्छा मैं और एक बात बता दूं, हीट अपना एकमात्र चैप्टर ऐसा है अपने पूरे साइंस वन में, हीट एकमात्र चैप्टर ऐसा है कि जहाँ पे वी विल यूज द यूनिट. सबको पता है कि यूनिट के दो सिस्टम होते हैं. एक होता है SI सिस्टम और एक होता है CGS. SI में हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर. उसके बाद में हम लोग का किलोग्राम, न्यूटन, ये सब हम लोग यूज करते हैं. और CGS में हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम. ठीक है. उसके बाद में सेंटीमीटर, करेक्ट है, डाइन, ऐसे सब यूज करते हैं. तो ये हीट चैप्टर जो है इसके लिए हम लोग CGS यूनिट सिस्टम यूज करेंगे. वी विल यूज CGS यूनिट सिस्टम. ठीक है. तो ये मैंने मास 1 ग्राम में लिया. CA अपने को पता नहीं है, इसे रख दिया. डेल्टा TA उन्होंने ऑलरेडी दिया है. डेल्टा TA इज 3. MB इज 1. CB पता नहीं है, इसे रख दिया. डेल्टा TB इज 5. इसको सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 1 3CA, 5 इंटू 1 5CB.
तो उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सी ए को ऐसे ही रखो, या इससे एक रेशो बना लो, क्या बना लो, रेशो। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक रेशो बना लो। तो सी ए के नीचे क्या आएगा, सी बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये थ्री उधर चला जाएगा तो 5/3। तो ये रेशो में बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि रेशो में से अपने को क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सी ए के सामने बड़ा नंबर है ना, बराबर है। सी ए के सामने क्या है, 5 विच इज अ बिगर नंबर, सी बी के सामने क्या है, 3 विच इज अ स्मॉलर नंबर। सो इसका मतलब क्या है कि सी ए का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, इसके लिए मैंने रेशो बनाने के लिए बोला, सी ए का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन सी बी, क्योंकि सी ए के सामने बड़ा नंबर है, सी बी के सामने छोटा नंबर है। सो नाउ यू कैन डू दिस थिंग, सी ए को उधर ही रखो और सी बी को उधर लेके जाओ, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 5 CB, एंड दिस इज हाउ यू कैन फॉर्मुलेट योर आंसर, कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए है इट इज ग्रेटर देन बी बाय 5/3 फैक्टर और 5/3 टाइम्स। ठीक है, तो ये पता करने के लिए, इसके लिए मैंने बोला कि पहले रेशियो बना लो, रेशियो बना लो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट सम। ओके, सो गाइज लेट्स डू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्री न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन अ रो। नाउ जो मैंने पहले बेसिक पढ़ाया था मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ठीक है, सो आई विल गिव यू सम स्टेप्स, डोंट वरी, बहुत सिंपल, आई विल गिव यू सम स्टेप। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू identify hot and cold object, आइडेंटिफाई हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट कौन है और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, वेरी फर्स्ट थिंग। देन सेकंड स्टेप is identify types of changes in them, identify types of changes in them। बताता हूँ। So there are total three types of changes will be there। ठीक है, very first is very first is only temperature change, खाली टेम्परेचर चेंज होगा। द सेकंड इज ओनली स्टेट चेंज, मतलब बोला है कि खाली यार लिक्विड टू सॉलिड हो गया, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, टेम्परेचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन देयर। सो ओनली स्टेट चेंज is the second type of change can be there, and third you know that both both temperature and state change, both temperature and state change। ठीक है, सो गाइज यू नो कि ओनली टेम्परेचर रहेगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू mc∆T। ओनली स्टेट चेंज रहेगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू ml। एंड बोथ रहेंगे तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर देंगे बेसिकली, mc∆T प्लस ml। ठीक है, दैट्स एट। एंड देन लास्ट में, एज वी ऑल नो, the principle of heat exchange we will use, principle of heat exchange। And what is that, what is that principle heat exchange क्या है, heat, तो किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उल्टा करेंगे तो भी चलेगा, इधर हॉट ऑब्जेक्ट को लिखा उधर कोल्ड ऑब्जेक्ट को लिखा तो भी चलेगा गाइस।
guys, please keep this stuff with you because this is extremely important for all three numericals. Extremely important. इसके बेसिस पे हम लोग बाकी का सब सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो ये चीजें प्लीज साथ में रखो बस. चलो, now let's see the very first numerical of a little different, like ये वाले सिनारियो का हम लोग देख लेते हैं. न्यूमेरिकल आपके सामने. लिक्विड अमोनिया, पहले हम लोग थोड़ा ना उसका स्टोरी समझते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस? बिकॉज वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट. तो वो पहले कर लेते हैं. लिक्विड अमोनिया इज यूज इन अ आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर. फ्रॉम वाटर मतलब इनिशियली हम लोग के पास क्या रहेगा, बोलो. वाटर रहेगा. क्या रहेगा? वाटर. और इस वाटर में हम लोग क्या डालने वाले हैं? हम लोग डालेंगे यहाँ पे अमोनिया गैस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया गैस, NH3. ठीक है, हम लोग अमोनिया डालेंगे. ये वाटर कैसा है? इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, राइट. एंड अमोनिया डालने के बाद क्या हो जाएगा? ये क्यूब्स हो गए. मतलब दिस इज नाउ इन द आइस. आइस मतलब दिस इज इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है. सो इनिशियली वाटर वाज इन लिक्विड स्टेट, देन हम लोग ने उसमें अमोनिया डाल दिया और फिर वो बन गया आइस, सॉलिड स्टेट. होल्ड ऑन. तो प्रोसेस को समझो. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द अमोनिया इज एक्टिंग एज अ कूलिंग एजेंट. द अमोनिया इज एक्टिंग एज अ कूलिंग एजेंट. ठीक है, ओके. नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, आइडेंटिफाई द हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. ना अमोनिया कूलिंग एजेंट है, मतलब अमोनिया सामने वाले को कूल कर रहा है ना. करेक्ट है. अभी देखो थोड़ा हम लोग ना कूलिंग, एक पहली बात तो समझना पड़ेगा कि कूलिंग करके ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं है. पहली बात तो हीट का रिलीज होना, इसको बोलते हैं कूलिंग. बराबर है. अगर मेरे पास मान लो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, राइट. वो हॉट ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? उसमें से हीट निकल रहा है. हीट इज गेटिंग रिलीज्ड. ओके. नाउ यहाँ पे क्या होगा देखो. ये अमोनिया जाएगा. अमोनिया इस पानी को ठंडा करने वाला है. ठंडा करने वाला है मतलब क्या है? पानी में से हीट निकलने वाला है. ठंडा होना मतलब हीट को निकालना. समझा? पानी ठंडा हो रहा है. बराबर है. पानी ठंडा होगा तभी तो बर्फ बनेगा ना. सो पानी ठंडा हो रहा है मतलब पानी में से हीट निकल रहा है, राइट. सो द वाटर हियर, द वाटर will be your hot object. Water will be your hot object, right. And the ammonia which is a, देखो अमोनिया एक कूलिंग एजेंट है, तो अमोनिया खुद पहले कूल रहेगा ना. बराबर है. अमोनिया खुद पहले बहुत ठंडा रहेगा, तभी तो सामने वाले को ठंडा कर पाएगा. सीधी बात है. तो अमोनिया क्या रहेगा? अमोनिया विल बी योर कोल्ड ऑब्जेक्ट. सबसे पहला स्टेप हो गया मेरा. यहाँ पे मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है. नाउ सेकेंड हम लोग को क्या देखना है? आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ चेंजेस. अभी उसके लिए न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो आई होप कि ये सिनेरियो सबको क्लियर रहेगा. अमोनिया एक कूलिंग एजेंट है, तो कूलिंग एजेंट है मतलब वो खुद तो बहुत ठंडा ही रहेगा. दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. एंड अमोनिया जब पानी में जाता है तो पानी ठंडा होता है, राइट. मतलब ठंडा होने का मैंने मीनिंग बताया कि गेटिंग कूल्ड डाउन मीन्स रिलीजिंग द हीट आउट ऑफ इट. रिलीजिंग द हीट, राइट. दैट मीन्स इनिशियली द वाटर इज हॉट ऑब्जेक्ट, तभी तो वो अपने अंदर में से हीट निकाल रहा है. दैट्स व्हाई वाटर इज अ हॉट ऑब्जेक्ट. आई होप ये पहले समझा रहेगा कि हॉट कौन है और कोल्ड कौन है. अभी हम लोग सम पढ़ते हैं टू गेट द टाइप्स ऑफ चेंजेस. चलो. इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस is to be converted into 2 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर पहले कितने पे था? 20 पे था. मैं वाटर के बारे में लिखता हूँ. वाटर पहले 20 पे था और 20 में से उसको 0 डिग्री पे लेके जाना है.
मतलब तुम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, टू बी कन्वर्टेड इनटू आइस, टू बी कन्वर्टेड इनटू आइस, करेक्ट है। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, यहाँ पे देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो, राइट, देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो। पहले क्या था वो, लिक्विड, और बाद में क्या बनेगा, सॉलिड। सो देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो। मतलब इसमें दोनों भी है ना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये वाला, राइट। वाटर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर चेंज भी है उसमें और स्टेट चेंज भी है। लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात करूं, मैं अगर अमोनिया की बात करूं, तो अमोनिया के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी एवोपरेटेड, एवोपरेटेड, मतलब अमोनिया पहले कैसा था, लिक्विड, और बाद में अमोनिया क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि अमोनिया पहले लिक्विड था और बाद में क्या बनेगा, गैस। मतलब अमोनिया के केस में देर इज अ स्टेट चेंज। लेकिन कहीं पे भी अमोनिया का टेम्परेचर चेंज मेंशन है क्या पूरे सम में, कि अमोनिया पहले ये टेम्परेचर पे था फिर अमोनिया वो टेम्परेचर पे पहुंचा? देर इज नो टेम्परेचर चेंज मेंशन्ड इन द सम, बट देर आर टू वर्ड्स, लिक्विड अमोनिया एंड एवोपरेटेड। मतलब अमोनिया कितना डालना पड़ेगा, अमोनिया कितना उड़ाना पड़ेगा, एवोपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज सादी सी बात है कि अमोनिया कूलिंग है, कूलिंग एजेंट है, तो वो खुद कोल्ड ऑब्जेक्ट है और कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स द हीट। तो लिक्विड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो गैस बनेगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग ने सेकंड स्टेप को किया, दैट इज वी आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ चेंजेस in the hot object and the cold object. Water is our hot object and that is undergoing two types of changes. There is a temperature change as well as there is a state change. Ammonia is our cold object, but there is a only type, one type of change, that is the state change. ठीक है, खत्म। सेकंड स्टेप खत्म, खत्म मतलब न्यूमेरिकल नहीं, सेकंड स्टेप खत्म। एंड नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। पहले हम लोग वाटर का एनालिसिस करते हैं। सो वाटर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, वाटर, and as we know in this particular case the water is a hot object, water is a hot object, right? तो hot object क्या करता है, रिलीज करता है, राइट। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, हीट रिलीज्ड बाय वाटर, हीट रिलीज्ड बाय वाटर। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गिवन लिखा नहीं है। मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले, फिर उसमें से जो जो रिक्वायर्ड है वो तुम लोग सब में से उठा लेना, ठीक है। वाटर, दैट इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट रिलीज बाय वाटर, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे दो चेंजेस है, टेम्परेचर चेंज एंड स्टेट चेंज, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, हीट रिलीज ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज प्लस, प्लस करूंगा मैं, देखो ना यहाँ पे प्लस किया है ना, दोनों को प्लस किया है, राइट। इसके लिए मैं प्लस करूंगा, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एम सी डेल्टा टी प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल। और जबकि ये वाटर की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, वाटर का डब्ल्यू, 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 ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या क्या चीजें लगने वाली है, उसके हिसाब से हम लोग सब में जाएंगे, ठीक है। देखो मास लगने वाला है, मास, मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कितने मास के साथ ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 2 किलो पानी है, 2 किलो पानी को कन्वर्ट करना है, बराबर है। मैंने क्या बताया था कि हीट एकमात्र चैप्टर ऐसा है कि जहाँ पे वी विल यूज द सीजीएस यूनिट्स, वी विल यूज द सीजीएस यूनिट्स, ठीक है। तो 2 किलोग्राम को अगर तुम लोग कन्वर्ट करोगे
2 किलोग्राम को कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोग को? यू विल गेट 2000 ग्राम. सो आई विल हियर यूज 2000 इनटू CW. ये मेरा MW हो गया. अब देखते हैं हम लोग CW क्या है. CW तुम लोग को पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. और जो उन्होंने दिया रहेगा, ठीक है, तो वो CW कितना होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. दिया रहेगा, टेंशन मत लो. दैट्स अ मटेरियल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी, मटेरियल ओरिएंटेड कांस्टेंट है. CW इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सॉरी, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 इंटू TW. देर इज अ टेम्परेचर चेंज, राइट. तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 20 से 0 बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 - 0. ठीक है. जिसको ज्यादा लॉजिक दिमाग में नहीं जाता वो लोग ऐसे याद रखो, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. लेकिन जो अबव एवरेज वाले बच्चे लोग हैं, जो टॉपर्स लोग हैं, उनके लिए मैं कारण देना जरूरी है बाबा. उन लोगों को मैं ऐसे ही बोलूंगा खाली 20 - 0 करो, हायर माइनस लोअर करो, बच्चे लोग नहीं मानेंगे. बच्चे लोग बोलेंगे सर क्यों. तो आई मेंशन द रीजन अर्लियर. ठीक है. मैंने जब इनिशियल फॉर्मूला डिस्कस किया था तभी मैंने बता दिया. 20 - 0 प्लस. नाउ अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू द स्टेट चेंज वाला थिंग, दैट इज mass of water is again 2000 into LW, that is the latent heat of. उन्होंने मेंशन किया है, नहीं किया है, इस सब में मेंशन नहीं किया है, बट दे विल मेंशन डेफिनेटली. दे विल डेफिनेटली मेंशन दिस थिंग. ठीक है. latent heat of melting the ice, या फिर बोल दिया evaporation, sorry, melting the ice, because ice, the water is converting into ice. तो वो दिया रहेगा तुम लोग को. latent heat of ice बोल दो या latent heat of, इस प्रकार से, या latent heat of water बोल लो. ठीक है. दिस इज 50 calorie per gram. Okay, so we will use this thing here. ये हो गया मास, और ये हो गया latent heat of melting the ice. Now we will calculate this stuff. 2000 इंटू 1 क्या नहीं लिखा तो भी चलेगा. 20 - 0 क्या आने वाला है? 20 प्लस ये कितना आने वाला है? 2 8 जा 16, राइट. और ये इधर के 4, यहाँ के 3 जीरो और वहाँ पे 1 0. ये कितना आएगा? 2 2 जा 4, यहाँ के 3 जीरो, वहाँ का 1 0. 4 और 16, दिस विल बिकम 20 एंड विद द 4 zeros. इसका यूनिट आएगा कैलोरी. ठीक है. सो दिस थिंग वी आर हैविंग. सॉरी. ये हो गया पूरा वाटर का एनालिसिस. ओके. आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर रहेगा. द लैटेंट हीट ऑफ वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन रहेगा, न्यूमेरिकल में मेंशन रहेगा. द लैटेंट हीट ऑफ आइदर द वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू आइस, राइट. तो फ्रीजिंग रहेगा मेंशन, या फिर मेल्टिंग रहेगा, फ्रीजिंग या मेल्टिंग. ठीक है. दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी वहां पे रहेगा. नाउ लेट्स गो फॉर द अमोनिया. अमोनिया, which is, you know that it is a cold object. और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब. हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया. और जैसे उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अमोनिया में टेम्परेचर चेंज के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ओनली स्टेट चेंज के बारे में लिखना है. ठीक है. और ये अमोनिया एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, बराबर है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हीट, सॉरी 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 सॉरी, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज. हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज. तो स्टेट चेंज का फॉर्मूला क्या है? ml. यहाँ पे लिख देंगे A, अमोनिया अमोनिया. तो अमोनिया का मास वही तो निकालना है.
बिकॉज क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया का मास निकालना है। इसके लिए एम ए अननोन है, तो एम ए को मैंने वैसे ही रखा, लेकिन लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया दिया है। कितना लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज 341। यहाँ पे आएगा 341। वेपराइजेशन मतलब समझा ना, क्योंकि लिक्विड अमोनिया इज गेटिंग एवापोरेटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ पे दे दो चाहिए तो कैल। एंड अभी क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करो। तो क्या आएगा यहाँ पे, हीट रिलीज, यहाँ पे लिख देंगे अपन बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट exchange, heat released by water and heat absorbed by ammonia। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जिसको मार्क्स चाहिए वो तो देखेगा ऑब्वियसली। हीट रिलीज बाय वाटर निकाल के रखा है मैंने ऑलरेडी। तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हीट रिलीज बाय अमोनिया, एम ए, यहाँ पे है आपका 341। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि 341 वहाँ पे चला जाएगा। अब ये जो जीरोस है पहले इसको सेपरेट करो, तो ये ऐसे दिखेंगे, 2 इंटू 1 लाख हो गया ना ये। हम्म, और फिर ये 341 देगा। ठीक है, अब सवाल है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक काम करो, ये डिवीजन करने के लिए बेसिकली तुम लोग एक काम कर सकते हो कि इस दो के साथ कुछ जीरोस भेज दो, कुछ जीरोस भेज दो। जैसे कि मान लो मैंने 2 जीरो भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया 200। और इन तीनों, ये इन तीन लोगों को आजू में बाजू में रखो, मतलब इनटू 1000। नाउ ट्राई टू डू द डिवीजन ऑफ दिस थिंग। ये आप डिवीजन कर लो। ठीक है, ये डिवीजन करने के बाद क्या आएगा आपका आंसर, चलो करके ही देखते हैं। अभी इतना किया है तो और करने में क्या, 341 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आंसर क्या आएगा। पहले तो आंसर ऑब्वियसली पता है क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। 341 जीरो जा 341। हाँ, यू कैन डू वन मोर थिंग, मैं और एक चीज यहाँ पे करेक्शन करके बताता हूँ। मैं और एक चीज बताता हूँ, तुम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने 2 जीरोस भेजे ना, उसके जगह पे 3 जीरोस भी भेज सकते हो। लेट्स सी कैसे आएगा वो। बड़ा नंबर भेजो, बड़ा नंबर, क्योंकि 2 जीरो भेज रहे तो ये छोटा नंबर हो रहा है ना, 200 हो रहा है ऊपर। तो ये और एक जीरो को भेज दो, मतलब ये हो गया ऊपर 2000 और नीचे हो गया 341, और बाजू में बचे ये 2 जीरोस मतलब 100। नाउ लेट्स डू दिस डिवीजन, 341 एंड 2000। सो अभी 341 जीरो जा 200, राइट। लेकिन बड़ा नंबर ले लो, डायरेक्टली 2000 पे जाओ। तो मैं बता दो क्या करने का। ऐसे डिविजन्स में ना सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो, क्योंकि पूरा टेबल तो अपने को पता नहीं 341 का। मल्टीप्लाई बाय 5 करो, क्यों करो वो भी मैं बता। मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 1 जा 5, ये कितना आएगा, 1705। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग डायरेक्टली 2000 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आइडिया आया कि अरे 341 इंटू 5 1705 मतलब इससे छोटा है, राइट। तो लेट्स गो अहेड ऑफ इट, 5 के आगे जाएंगे अभी अपन। इसके लिए पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, मतलब पहले 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं,
कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पता चले कि और आगे का नंबर लेना है कि पीछे वाला नंबर लेना है। ठीक है, अब इसके आगे वाला नंबर देखो क्या आता है, 341 × 6, क्या आएगा आंसर ये। इसको इसका आंसर आ रहा है 2046, तो ये लेके बट ऑब्वियसली चलने वाला नहीं है, तो हम लोग 5 से करेंगे। 341 5 जा 1705। ये सब्ट्रैक्शन करो कितना आएगा, ये आ रहा है 295। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे पॉइंट, क्योंकि नीचे आगे उतरने के लिए कोई नहीं है, पॉइंट दे देंगे। तो पॉइंट देने के कारण यहाँ पे आ जाएगा 0। सो अभी 341 सिक्स तुम लोगों ने निकाला है, 341 7 का निकालो कितना होता है, 41 7 का, इट इज कमिंग एज 2387। तो और एक निकालो 341 8 जा, बड़ा सिंपल नंबर, मतलब सिंपल कैलकुलेशन, इसमें भी कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि नीचे तो सिंगल डिजिट ही है ना फिर भी। दिस इज योर 270, 341 9 जा, दिस इज कमिंग एज 3069। तो इतना तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7, 7 नहीं सॉरी 8 कर लो, 8 8, 341 8 जा 2728, इसका माइनस करके आंसर कितना आएगा, 2950 माइनस 27, द आंसर इज कमिंग एज 222। बट सिंस देयर इज अ, एक ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट तक निकाल के रखो ना आंसर, 4 डिजिट तक, मतलब 4 मतलब टोटल 4 होनी चाहिए, टोटल 4। ये दो हो गए, 5 हो गया और 8 हो गया, दो हो गए और दो निकालो। ठीक है, इधर 0 लग जाएगा, 222, यानी कि यहाँ पे 6 ही आएगा फिर से, 6 दैट इज 2046। सो ये सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 2220 माइनस 2046, दिस विल बिकम एज 174। बट बिकॉज ऑफ द डेसिमल पॉइंट अगेन यहाँ पे 0 लगेगा। अभी एक लास्ट डिजिट बस, ये देखो ये है 3415 जा, तो 3415 जा हमने निकाल के रखा है 1705। अब इसका रिमाइंडर जो भी आए तुम लोग को उससे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि तुम लोग को तुम्हारा क्वेश्चन मिल गया। तो द आंसर इज 5.865। ठीक है, इंटू 100 है ना। अब ये 100 के कारण क्या होगा, अब मैं इसको बाजू में कर देता हूँ। जब भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ 100 1000 एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, जितने जीरो है उतने बार वो जंप मारेगा। तो दो जीरो है इसके लिए, एक दो, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा 586.5, मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन इसमें। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस में रहेगा बोलो, ग्राम में रहेगा, क्योंकि अपन ने पूरा सिस्टम ही ग्राम में लिया। दिस इज द फाइनल आंसर, कि इतना अमोनिया यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको कहीं पे तो अच्छे से लिख लो। ठीक है, अमोनिया वाला समझ गया, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वाला पार्ट मेरे को लगने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Another beautiful sum. Let's again try to understand the whole story about it. ठीक है, सम का पहले स्टोरी समझ के लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइम जाएगा। अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट, एक पॉट है, हैज 150 ग्राम
हैज 150 ग्राम ऑफ आइस, मतलब इसके अंदर पहले से क्या है बोलो, आइस है। दिस इज योर आइस, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली एट द solid state, in the solid state at temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी मेंशन किया है। हाउ मच steam of 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट, मतलब हम लोग ऊपर से पता है क्या भेज रहे हैं, दिस इज योर स्टीम। सबको पता है स्टीम कौन से स्टेट में होता है, गैशियस स्टेट में होता है स्टीम, ठीक है। तो आई होप कि स्टोरी समझा रहेगा, मतलब स्टोरी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। पहले आइस है, नहीं चला गया मेरे घर पे, नहीं, पहले आइस है, पॉट के अंदर आइस है, हम लोग ऊपर से क्या डाल रहे हैं, स्टीम डाल रहे हैं, ठीक है। आइस सॉलिड स्टेट में है, स्टीम गैशियस स्टेट में है। अभी इसके बाद क्या हो जाएगा वो जरा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे। बट ऑब्वियसली तुम लोग हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इजीली मुझे बता सकते हो। स्टीम इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, एंड आइस इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो देखो, स्टीम अपने अंदर का हीट निकाल देगा, यानी कि स्टीम ठंडा होगा। तुम लोगों को सबको ये बेसिक चीज तो पता है, क्या पता है, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड मिलता है, लिक्विड को हीट किया तो गैस मिलता है, बराबर है। अभी ये भी जान लो कि गैस को अगर कूल किया तो क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, करेक्ट है। एंड लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड मिलता है। तो भी जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो स्टीम आइस के साथ रिएक्ट होगा, बराबर है, तो आइस इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण द आइस विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, the ice will converted into liquid water, right? So can you see this water, this is the water converted from ice, this is the water converted from ice, ठीक है। ओके, बट अलॉन्ग विद दैट, जो तुम लोग का ऊपर से स्टीम आ रहा है ना, ये जो ऊपर का स्टीम है, राइट, ये स्टीम भी क्या हो रहा है, स्टीम इज रिलीजिंग द हीट, द स्टीम इज रिलीजिंग द हीट, मतलब स्टीम क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो व्हेन स्टीम विल रिलीज द हीट इट विल बिकम लिक्विड, इट विल बिकम लिक्विड, राइट। सो वो भी क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यू सी दिस लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है बोलो, वाटर। बट दिस वाटर इज फॉर्म में जानबूझ के अलग कलर से दिखाया है, दिस वाटर इज फॉर्म फ्रॉम स्टीम, ठीक है। ट्राई टू गेट द डिफरेंस गाइस। आइस, आइस गर्म होके पानी बना है, और स्टीम ठंडा होके पानी बना है, ठीक है। यानी कि दोनों का जो मिक्सिंग होने के बाद जो मिलेगा वो दोनों का क्या, दोनों में से क्या मिलने वाला है, पानी ही मिलने वाला है। ओके, चलो, ये पार्ट था स्टोरी का। ओके, तो एक स्टेप तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, आइडेंटिफाई द हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट स्टीम रहेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट आइस रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो मैं पहले बात करता हूँ स्टीम की। स्टीम में कौन से एंड स्टीम एज अ हॉट ऑब्जेक्ट, उसमें कौन से चेंजेस हैं। तो देखो उन्होंने क्या दिया था, या तो एक काम करते, चलो पहले स्टीम नहीं, पहले हम लोग
आइस की बात करते हैं, आइस एज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो क्या लिखा है वहां पे, थर्मल इंसुलेटेड पॉट हैज अ 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री, एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री। मतलब कुछ तो टेम्परेचर मेंशन्ड है ना, बराबर है, यानी कि आगे जाके उसका कोई ना कुछ तो टेम्परेचर चेंज उसमें होने वाला है। हाउ मच स्टीम of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that the water of temperature 50 degree Celsius will be obtained। यानी कि इस आइस के साथ टेम्परेचर भी चेंज होने वाला है, और उसके साथ क्या चेंज होने वाला है, वो आइस बनेगा वाटर, मतलब स्टेट चेंज भी होने वाला है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि ये जो आइस है, वो आइस पहले 0 डिग्री पे था, कितने पे था, 0 डिग्री पे। अब उस आइस को कन्वर्ट करना है, क्या देखो लिखा, how much steam has to be mixed to it so that the water of temperature 50 degree Celsius will be obtained। मतलब इस आइस में से जो वाटर मिलेगा, उस वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, क्लियर कट, एंड देयर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो, बिकॉज वो पहले कैसा था, सॉलिड स्टेट में था, और बाद में क्या बनने वाला है, लिक्विड बनने वाला है। ठीक है, तो आइस वाले केस में दोनों फॉर्मूला का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आइस वाले केस में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीम वाला केस, स्टीम के बारे में बात करते हैं। स्टीम, इट इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, राइट, स्टीम इज अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टीम में क्या हो रहा है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, देखो उन्होंने स्टीम का भी टेम्परेचर दे दिया, करेक्ट है, और हम लोग को एक बात पता है कि यही स्टीम क्या बनने वाला है, पानी बनने वाला है, राइट। ऐसा पानी, अभी देखो ये पानी और ये पानी, दोनों पानी मिक्स होंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि इसका टेम्परेचर अलग और इसका टेम्परेचर अलग, ऐसा नहीं कभी होगा। तो इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचाना है और इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये जो स्टीम है, जो पहले स्टीम का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री, और बाद में पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री। मतलब स्टीम में क्या है, स्टीम में देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, 100 डिग्री टू 50 डिग्री। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि स्टीम, स्टीम क्या होने वाला है, पानी बनने वाला है, मतलब देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो, देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो। यहाँ पे स्टेट चेंज कैसा है, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। ठीक है, सो इन शॉर्ट दोनों में, आइस में भी और स्टीम में भी दोनों प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं, यानी कि दोनों के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एडिशन वाला। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो पहले मैं सब इंफॉर्मेशन लिखूंगा आइस का, आइस विच इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। चलो एक सेकेंड, मैं चार्जर मंगा लेता हूँ। ओके, सो आइस इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड एज वी हैव डिस्कस, आइस के साथ दोनों भी टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज प्लस हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज। ठीक है, दोनों लिख दिया। अभी आगे, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द टेम्परेचर चेंज, उसका फॉर्मूला क्या था, एम सी डेल्टा टी, और इसका फॉर्मूला क्या था, एम एल। और ये आइस की बात हो रही है तो यहाँ पे लिख देंगे आई, आई, आई,
आई आई, ठीक है। मास, मास, क्या देखे रखा है? कुछ मास वास दिया है? यस दिया है, 150 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। तो पहले वैल्यू पुट कर दो, और ग्राम में है ना ऑलरेडी, 150। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा बोलो? बोलो कितना रहेगा? है तो वो वाटर ही, ठीक है। मटेरियल तो सेम ही है ना। स्टेट अलग अलग है, लेकिन है तो मटेरियल सेम ही, वाटर बोलो आइस बोलो, मटेरियल तो सेम है। आई टोल्ड यू स्पेसिफिक हीट इज द मटेरियल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? अभी डेल्टा टी देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा टी क्या आएगा? डेल्टा टी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आइस के साथ क्या हो रहा है? फ्रॉम 0 to 50 डिग्री सेल्सियस उसको बनाना है। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 50 - 0 प्लस, अभी स्टेट चेंज वाला फॉर्मूला, 150 आया मास। लैटेंट हीट उन्होंने दिया रहेगा, देखो क्या दिया है वहां पे उन्होंने, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, उन्होंने देखे रखा। कितना देखे रखा है वो? 80। तो यहाँ पे आएगा 80। लेट्स कैलकुलेट दिस थिस। 150 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है, छोड़ दो उसको। 50 - 0 इज 50। अभी इसको सॉल्व करो। 15 8 जाए कितना लेगा? 120, और ये 20, 15 5 जाओ कितना आएगा ये? 1 2 3। तो अगर हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा ये? 19500 चलेगा, ठीक है। अब आगे चलो। तो अभी ये हो गया आइस का एनालिसिस, ये पूरा हो गया आपका आइस का एनालिसिस, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल के उधर के रख दो। अब हम लोग, ओके, स्टीम का एनालिसिस करते हैं। Now, हम लोग सबको पता है कि स्टीम एक क्या है बोलो? हॉट ऑब्जेक्ट है। एंड हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है? हीट को रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हीट रिलीज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्टीम में भी दोनों प्रकार के चेंजेस है ना, टेम्परेचर चेंज भी है और स्टेट स्टेट चेंज भी है। टेम्परेचर चेंज कैसा है? वो स्टीम आएगा और स्टीम का पानी बनेगा, और वो स्टीम से बना हुआ पानी, स्टीम से बना हुआ पानी आइस से बने हुए पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, बराबर है। तो दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा? 50 डिग्री। तो यानी कि स्टीम में देर इज अ टेम्परेचर चेंज, और स्टीम का पानी बन रहा है, दैट्स व्हाई देर इज अ स्टेट चेंज ऑल्सो। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा देखो? हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज प्लस हीट रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला आएंगे, एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। और एस टी में इसके लिए हम लोग एस 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 लिखते हैं। अब उनका क्वेश्चन ही क्या है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हाउ मच स्टीम इज टू बी एडेड। मतलब यहाँ पे स्टीम का मास पूछा है उन्होंने। हाउ मच स्टीम मतलब स्टीम का मास पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग एम एस को वैसे ही रखेंगे। एम एस विल बी अननोन थिंग फॉर अस, राइट। सी एस दैट इज अ स्पेसिफिक हीट। अब सीधी बात है यार, क्या है वो? स्टीम मतलब है तो पानी, मटेरियल, मटेरियल तो सेम ही है, तो यहाँ पे आएगा 1। एंड डेल्टा टी एस, स्टीम का टेम्परेचर क्या होने वाला है? लिखा है हम लोग ने, 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री का पानी बनने वाला है वो। तो टेम्परेचर चेंज क्या रहेगा?
100 माइनस 50। यहाँ पे अगेन एम एस पता नहीं है। एल एस लैटेंट हीट ऑफ उन्होंने दिया रहेगा, वेपराइजेशन या फिर ऐसे कुछ दिया रहेगा। देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना दिया है, 540। तो we use that latent heat of vaporization of water 540। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो। ms into 1 is ms only, into 100 minus 50 is 50, plus ms into 540। अब क्या करो, ms को कॉमन ले लो। ms को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 50 प्लस 540। तो आंसर में क्या आएगा, 590 इंटू ms। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज वी विल यूज। by principle of heat exchange, heat absorbed by ice is equals to heat released by steam। ठीक है, और अभी हीट एब्जॉर्ब बाय आइस हमने निकाल के रखा था वहाँ पे ऑलरेडी, 19500। और यहाँ पे हीट रिलीज बाय स्टीम हमने अब भी जस्ट निकाला 590 ms। ये 590 वहाँ पे जाएगा, 19500 अपॉन, तो आई थिंक ये डिवीजन तो आप कर सकते हो, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ms इज इक्वल्स टू 1950 अपॉन 59। तो आई थिंक ये वाला तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, ms इज इक्वल्स टू आएगा 33 ग्राम। ठीक है, लेट्स चेक इट। 1950 डिवाइडेड बाय 59, 33.05 समथिंग आ रहा है, वो राउंड ऑफ करके 33 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर, दिस पर्टिकुलर सम इज डन। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट सम ऑफ दिस अनसॉल्व्ड सीरीज। ओके, so let's go to the last unsolved numerical, and let's again first of all try to understand the story of that numerical। ठीक है, so guys there is a कैलोरीमीटर। सो सबसे पहले कैलोरीमीटर के बारे में तुम लोग को जरा एक चीज बताता हूँ। दिस इज योर कैलोरीमीटर। ठीक है, एंड कैलोरीमीटर के हम लोग अंदर क्या करते हैं, हम लोग अंदर डालते हैं पानी। इसके अंदर रहेगा पानी, और ये तुम लोग का है कैलोरीमीटर। अब चीज तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कैलोरीमीटर यूज कहाँ पे करते हैं। हम लोग इसके अंदर जो भी हॉट ऑब्जेक्ट डालेंगे, कोल्ड ऑब्जेक्ट डालेंगे। अगर हॉट ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो हॉट ऑब्जेक्ट हीट को रिलीज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो किसने कितने हीट को रिलीज किया या गेन किया, वो निकालने के लिए हम लोग ये सिस्टम यूज करते हैं। इसके अंदर एक थर्मामीटर भी होता है। अपने को खाली न्यूमेरिकल के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट the calorimeter and the water, right? The calorimeter and the water inside of it, they act as a team. They act as a team, right? So let me give you an example. Suppose if I'm dropping a hot object, if I'm dropping a hot ball, right? A hot metal ball, then this ball will be a hot object. But when it will come to the cold object, no, as a cold object, these both things will work as a team, right? So when I'm saying कि जब मैं जो मैंने आपको रूल लिख के दिए थे, उस रूल में मैंने क्या बोला है कि पहला स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है कि अगर मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, कैलोरीमीटर एंड वाटर। ये दोनों भी एक साथ में काम करेंगे, वो दोनों भी साथ में, वो दोनों भी क्या रहेंगे, कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेंगे।
दोनों भी क्या रहेंगे, कोल्ड ऑब्जेक्ट। बराबर है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और सपोज मैंने जैसे अभी अपना न्यूमेरिकल में है, सपोज इफ आई एम ड्रॉपिंग द आइस इनटू इट, if I'm dropping the ice into it, right? So ice alone will act as a cold object. The ice will act as a cold object, correct? But the calorimeter and water both will act like a team. Both will act like a team and both will act as a hot object. Both will act like a hot object. Okay? सो चलो लेट्स, पहले इतना बात तो समझ लिया हम लोग ने, ठीक है। ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं, कैलोरीमीटर एंड वाटर दोनों भी साथ में काम करने वाले हैं, यानी कि ऐसे कभी नहीं होगा कि वाटर कोल्ड है और कैलोरीमीटर हॉट है, ऐसे कभी होने वाला नहीं है। ये पहली चीज को समझ लो। अब हम लोग का सम का सिनेरियो जो है वो मैं सिनेरियो तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। इनसाइड द कैलोरीमीटर देयर इज अ वाटर, वी आर ड्रॉपिंग द आइस इनटू इट, एंड व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही आइस पानी में जाएगा, राइट, आइस उसमें पिघल जाएगा, आइस उसमें मेल्ट हो जाएगा। ओके। और उस आइस का क्या बनेगा, पानी। तो अगेन जैसे मैंने लास्ट समय बताया था कि ये दिख रहा है तुम लोग को, this is the existing water inside the calorimeter and this is the, can you see this water, right? This is the water which we got from the melting of ice, ठीक है। तो दोनों का वाटर ही बनने वाला है। चलो, एक सेकंड। ओके, चलो, तो इतना समझा। अभी लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल। तो मैंने हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट कर लिया। कौन है हॉट ऑब्जेक्ट? हॉट ऑब्जेक्ट रहेगा, अभी देखो ये हम लोग आइस डाल रहे हैं ना, तो आइस विल बी ऑब्वियसली कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? वाटर प्लस कैलोरीमीटर, वाटर प्लस कैलोरीमीटर, दिस विल बी योर हॉट ऑब्जेक्ट। एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? वो रहेगा आइस जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप करते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम लोग पहले आइस के बारे में बात करते हैं। A calorimeter has a mass of 100 gram, specific heat of 0.1. It contains the 250 gram of liquid वगैरह वगैरह having the specific heat of this thing. If we drop, मैं पहले आइस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं डायरेक्टली लास्ट में जाता हूँ। If we drop a piece of ice of mass 100, sorry, of mass 10 gram at 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक सर्टन टेम्परेचर उसका देके रखा है। देखो, अगर एक इनिशियल टेम्परेचर भी दिया होता है ना, मतलब पता फटक से अपने को हिंट मिलता है कि देयर विल बी अ टेम्परेचर चेंज। सो आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पानी था और जो बाद में आइस से पानी बना है, वो दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों घुल मिल जाएंगे, उसका एक मिक्सचर बनने वाला है। बराबर है। तो अल्टीमेटली ये आइस का पानी ही बनने वाला है, और ये आइस से बना हुआ पानी एंड एग्जिस्टिंग वाटर, इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। करेक्ट है। सो इन शॉर्ट द होल थिंग इज कि द आइस इज शोइंग यू द टेम्परेचर चेंज एज वेल एज आइस का पानी बन रहा है ना, मतलब इट इज शोइंग यू द स्टेट चेंज ऑल्सो। दोनों भी चेंजेस है, आइस के केस में दोनों भी चेंजेस है, टेम्परेचर चेंज भी है और स्टेट चेंज भी है, ठीक है। अब हम लोग वाटर एंड कैलोरीमीटर का देखते हैं। अब वाटर के केस में देखो, पहले से पानी था, राइट। अब पानी का यहाँ पे जो अंदर कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी था, उस पानी का कोई स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। बराबर है। उन्होंने क्या लिखा है? द कैलोरीमीटर हैज अ मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट, इट कंटेन्स द 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर पहले कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। बराबर है। एंड टेम्परेचर थोड़ा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो भी है, बट टेम्परेचर खाली चेंज होने वाला है, स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली टेम्परेचर चेंज।
वाटर के केस में, राइट, क्योंकि वो अंदर से अंदर पहले वो वाटर के फॉर्म में ही था। एंड कैलोरीमीटर के केस में ऑब्वियसली कोई भी बच्चा भी बता देगा, कैलोरीमीटर तो एक इक्विपमेंट है, तो उसमें कोई स्टेट चेंज होने वाला नहीं। तो कैलोरीमीटर का भी क्या होगा बोलो, खाली टेम्परेचर चेंज। अब यहाँ पे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस क्या किया था, जो वाटर के साथ होगा वही कैलोरीमीटर के साथ होगा, जो टेम्परेचर पे वाटर रहेगा वही टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर रहेगा। तो अगर आइस के डालने से अंदर का जो एग्जिस्टिंग पानी है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, बराबर है, तो ये कैलोरीमीटर जो है उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो हियर बाय वी हैव आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग पहले, चलो पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, हॉट ऑब्जेक्ट का। तो उसमें वाटर में ओनली टेम्परेचर चेंज है, एंड कैलोरीमीटर में भी ओनली टेम्परेचर चेंज है, और दोनों भी हॉट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हीट, हॉट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिलीज करता है ना, हीट रिलीज बाय, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे वाटर और कैलोरीमीटर साथ में है। हीट रिलीज बाय सिस्टम ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हीट रिलीज्ड बाय वाटर इनसाइड कैलोरीमीटर प्लस हीट रिलीज्ड बाय कैलोरीमीटर, क्योंकि उसका भी टेम्परेचर चेंज होने वाला है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा, एम सी डेल्टा टी, इधर भी आएगा एम सी डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वाटर वाटर वाटर, यहाँ पे आएगा कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर। लेट्स पुट द वैल्यूज। मास ऑफ वाटर उन्होंने कुछ दिया है क्या, अ कैलोरीमीटर हैज मास ऑफ 100 ग्राम, ये तो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिकेशन है, कैलोरीमीटर का मास कितना दिया 100, तो डाल दो यहाँ पर 100। ठीक है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कितना दिया, 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग कन्वर्ट भी करेंगे ग्राम में, तो भी आंसर वही आने वाला है। यहाँ पे लिखा मैंने, कैलोरीमीटर मास इज 100 ग्राम, देन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी बोलेंगे सर तुम लोग ये किलोग्राम में है, तो अपने को सीजीएस में चाहिए ना, तो सिंपल है, 0.1, ये किलो को भी कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये किलो को कन्वर्ट करने के लिए भी इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा। 10⁻³ 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसर। इसके लिए अगर ग्राम में भी देखेंगे तो वही वैल्यू मिलता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या चाहिए, डेल्टा टीसी। डेल्टा टीसी मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना रहेगा कैलोरीमीटर का, उन्होंने क्या लिखा है देखो, इट कंटेन्स द 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरीमीटर के अंदर जो पहले से पानी था उसका टेम्परेचर 30 है, तो जाहिर सी बात है कि कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री में से ही बाद में जो भी बनेगा टेम्परेचर वो बनेगा। तो इनिशियली टेम्परेचर कैलोरीमीटर का रहेगा 30,
और बाद में टेम्परेचर क्या बनने वाला है वो अपने को पता नहीं है, वो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी कि तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। कौन तीनों का, कौन से तीनों का? ये आइस का जो टेम्परेचर है वो जीरो से होने वाला है सर्टेन टेम्परेचर टी, वो अपने को पता नहीं तो मैंने उसको लिया टी। आइस का टेम्परेचर होगा जीरो से टी। वाटर का टेम्परेचर, वाटर पहले कितने टेम्परेचर पे था, 30 डिग्री। तो इसका भी टेम्परेचर होने वाला है 30 से टी। और कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा 30 से टी। ठीक है। आइस वाले केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, और इन दोनों के केस में टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है। इसके लिए दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। क्या रहेगा टेम्परेचर चेंज, 30 - 3। यहाँ पे सी डाल दो, दैट इज 0.1। टेम्परेचर चेंज ऑफ कैलोरीमीटर कितना आएगा, 30 - 3। जो कैलोरीमीटर के साथ होगा वही वाटर के साथ होगा। फिर यहाँ पे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर उन्होंने कितना दिया था, उन्होंने दिया था 250 ग्राम। इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट वाटर बोल दो या लिक्विड बोल दो। अब यहाँ पे हम लोग इसको वाटर के बदले कोई लिक्विड भी ले सकते हैं। ठीक है, so we'll say here liquid। इधर एल कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कितना दिया उन्होंने, 0.4। आपको पता है स्पेसिफिक हीट वो कन्वर्जन वगैरह करने के बाद वही आने वाली है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलो किलो कैंसिल होगा तो वही आएगा 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आएगा 0.4। और डेल्टा टी एल तो वही आएगा मेरे 30 - 2। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 250 × 0.4, तो ये आपका आएगा 100 × 30 - 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 10 × 30 - टी। ठीक है, अब इसको कॉमन लीजिएगा 30 - टी को, तो अंदर बचेगा 100 + 10। देखो मैंने खाली इतना फर्क किया है, मैंने वाटर लिया था ना, मैंने क्या लिया था कि कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, वाटर है। तो वो वाटर को वाटर लिखो या लिक्विड लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, लिक्विड लिख दो तो भी चलेगा। तो उसका स्पेसिफिक हीट 0.4 है, अभी वैल्यू अलग है इसके लिए वी कैन कंसिडर इट एज अ लिक्विड, नॉट एज अ वाटर, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 होता है। इसको क्या आएगा, 30 - 3 इंटू ये आएगा 110। तो ये आपका एक सिस्टम मतलब इसका हो गया हॉट ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग आइस का एनालिसिस करते हैं। तो आइस में भी हम लोग को जैसे कि पता है, आइस में दोनों चेंजेस है, टेम्परेचर चेंज भी है और स्टेट चेंज भी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइस विच इज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, और वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे टेम्परेचर चेंज एंड स्टेट चेंज दोनों भी है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय, और हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग
टेम्परेचर चेंज प्लस हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज, एम सी डेल्टा टी एंड एम एल। और ये आइस का है तो आई 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 लिख देंगे अपन। उन्होंने आइस का मास कितना देके रखा है, देखते हैं। 10 ग्राम, तो यहाँ पे आएगा 10। फिर आइस का स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा बोलो। आइस का स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा। जाहिर सी बात है, मटेरियल सेम है, वाटर ही है, तो इधर 1 रहेगा। तो वाटर है ना आइस भी। डेल्टा टी आई, जीरो से टेम्परेचर चेंज होने वाला है टी तक, क्योंकि तीनों का टेम्परेचर बाद में सेम ही रहने वाला है। कौन से तीनों, जो पहले से पानी मौजूद था वो, बाद में आइस का जो पानी बना वो, और कैलोरीमीटर, तीनों का फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसके लिए आइस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, टी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T-0। टेम्परेचर बढ़ेगा ना, T-0। यहाँ पे आएगा ml मास, और इसका लैटेंट हीट है 80। इधर आंसर आएगा T-0 T होता है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 10 T। और यहाँ पे आएगा आंसर आपका 800। और अभी आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करोगे, बराबर है। बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या लिखेंगे हम लोग, heat released by system of hot objects is equals to आइस के बारे में, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। और अगर मैं दोनों का वैल्यू पुट करूं, तो देखिए दोनों का वैल्यू मेरे सामने है। यहाँ पे ये है 30 - T × 110, और यहाँ पे है 10T + 800। तो चलिए इसको सॉल्व करते जरा। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 30 × 110 -110T = 10T + 800। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ये हो जाएगा 11 3 33 00 -800। ये आ जाएगा आपका 10T + 110T। ये हो जाएगा आपका 120T। ये आपका हो जाएगा 33 - 8। ओके, देन 2500 अपॉन 120, 00 कैंसिल। इसको आप डिवीजन करेंगे अगर, 250 ÷ 12, तो आपका आंसर आएगा 20.83 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 3 लोग, एक तो आपका कैलोरीमीटर, राइट, उसके अंदर का जो एग्जिस्टिंग लिक्विड है, ये दोनों का टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 20.83। और ये जो ऊपर से आइस आया था, और ये जो आइस का पानी बना था, जो आइस का पानी बना था, उसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 20.83 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये काफी समझने लायक सम है। तो कंसेप्चुअल पार्ट मैंने पढ़ाया, प्रोसेस मैंने पढ़ाया पूरा। आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है किसके ऊपर, डेटा गिवन के ऊपर। और मैंने क्या बोला, एक बार आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको खुद ही, फॉर्मूला आप लगाने के बाद आप खुद ही डेटा गिवन का पार्ट अलग से बना सकते हो। तो एग्जाम में ये सम लिखने का टाइम पे क्या करो, डेटा गिवन के लिए चाहिए तो आप ऊपर जगह छोड़ो, डेटा गिवन के लिए मस्त में जगह छोड़ो, नीचे आप अपना फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करो, एंड फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिवर्स इंजीनियरिंग करो, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग।
फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डेटा गिवन एंड टू फाइंड वगैरह लिखते जाओ, ठीक है। सो we are done with the unsolved sums of the heat over here. We'll see the solved sums in the next video.